session, week 13. So today we will discuss AC and DC motors. Do you have any idea about AC motors? Any of you? Alternative current. Alternate current motors use alternate current called the AC motors, and DC motor डायरेक्ट करंट मैं तो Direct. डायरेक्ट करंट यूज करते हैं. direct current use obviously. What is meant by direct current? जो अल्टरनेट नहीं Which होता is मैम. in one phase. जी, जो मैम सिंगल alternate नहीं फ्लोर से होता, आ रहा. सिंगल फ्लो से आ रहा है, which is in the one phase. Very good. Only one phase direct current, alternate current having alternate phases. Okay. डिफरेंट सर्किट लगे होते हैं इसमें. Exactly. Different circuits are present, and the wave is sinusoidal basically. Then, if you see this diagram, it is the basic representation. जी बेटे. Okay. मैम वो शोर आ रहा था. Okay. Now mute हो गया है वो. Okay. डीसी मोटर की रिप्रेजेंटेशन है इस डायग्राम में थोड़ी सी शो की हुई है. यू कैन सी क्लियरली अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल एंड अ रोटेटिंग मोटर हैविंग द ब्रश, a split ring commutator and the current source. Okay, so this is the basic diagrammatic representation of the DC motor. Then what is the working principle of DC motor? When current passes through the coil, the resulting forces acting on its sides at right angle to the field cause forces to act on those sides to give a rotation. For the rotation to continue, when the coil passes through the vertical position, the current direction through the coil has to be reversed. What is the working principle? Any of you who got the idea of this? Okay, guys, we have already learned that whenever current will flow, it will cause the production of magnetic field. And whenever magnetic field will be present around a current in moving direction, it will cause another, you can say, the effect on the current, that is the EMF, electromotive force. थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करें. मैम ईएमएफ का बता दें जरा. क्या कह रहे हैं? ईएमएफ का बता दीजिएगा. CNS? ईएमएफ का. EMF इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ का फोर्स. पूछ रहा हूँ. EMF इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नहीं मैम whenever यहाँ पे current pass ईएमएफ through a, कैसे कर रहा है. कि हम अब पढ़ेंगे ना इसको, कि जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट है कॉइल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो इफेक्ट होती है. इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होती है. ठीक है, और उसी की बेसिस पे तो मोटर वर्क कर रही है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ईएमएफ हमने पढ़ा है इसकी एप्लीकेशन है इस एसी एंड डीसी मोटर्स. तो बेसिकली हम ये पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि ये इंडिकेशन है हमारी ईएमएफ की. ठीक है, whenever current will flow through a coil, it will cause a magnetic field, and magnetic field will create and will affect the movement of electrons, which in turn cause the EMF. Okay. As they mentioned, for the rotation to continue while the coil passes through the vertical position, the current direction to the coil has to be reversed. Whenever the coil will move after 180 degree, its direction will reverse. और because current की direction frequently reversed हो रही है, movement यानी कि समझ लें कि उसकी बार बार change हो रही है, जिसकी वजह से एक magnetic field effect will produce. Okay, got it? ओके मैम. What are the parts of DC motor? Stator, permanent or non-permanent magnet. Uh, where is the magnet here? जिसको हम stator कहेंगे. In this diagram, here is the stator magnet. Okay.
मैम साउथ एंड नॉर्थ दोनों होंगे स्टेटर? स्टेटर मैग्नेट को कह रहे हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों को मिला के कह रहे हैं। क्योंकि पहले इसमें डिवाइड था जिसमें हमें स्टेटर कहा हुआ है। डिवाइडेड कोई साउथ भी एंड नहीं नॉर्थ है। पोल अलग थे जिसमें हमें स्टेटर कहा है। नहीं, नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमने पढ़ा था, ये जी प्रिंसिपल मैम। है, ये दोनों एक साथ यस प्रेजेंट हो मैम। सकते हैं, ये कभी यस भी मैम। अलग नहीं होते। ये सिर्फ इनका आपको ना छोटा सा हिस्सा दिखाया हुआ है, ये राउंड है, ये पूरा घुमा हुआ है जी मैम। मैग्नेट। ओके, ओके मैम। देन रोटेटर जो घूम रहा है, रोटेटर क्या, जो दरमियान में कॉइल घूम के एक करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रही है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेटर। देन आर्मेचर, commutator and brush, these are the parts of DC motor. Then what is brush, what is the purpose of brush, why it is used in DC motor? A brush type DC motor is essentially a coil of wire which is free to rotate. Okay, अगर यहाँ पर ये ब्रश ना मौजूद होता, ये जो साइड में नजर आ रहा है, तो कॉइल जो है वो एक पॉइंट के साथ स्टिक रहती, दैट विल मोर लाइक एडहेसिव टू अ परमानेंट पॉइंट, और कॉइल फ्रीली मूव नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई ब्रश इज यूज, सो दैट कॉइल कैन मूव in all directions. Okay, termed as rotator in the field of magnet or non-permanent magnet. The magnet termed as stator since it is stationary. Got it? Why north and south pole are collectively called as magnet, and magnet is called stator because it is not moving. Okay. Yes Then मैम। for the rotation to continue while coil pass through vertical position, the current direction is reverse, which is got by use of brushes making contact with the spring ring commutator. Up there are two rings are present that are the split rings that connect the coil to the current source. Okay, it is very much easier to understand the construction of DC motor because it is not more like difficult here. हम उसकी इतनी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं कि आप लोग उसको समझे नहीं. It will be really much understandable. Then here comes the mathematical representation and the numerical representation. For an armature conductor of length L and carrying a current I and force resulting from a magnetic flux of density B, a triangle to the conductor is given by F is equal to BIL. Anyone would like to tell me that what is meant by magnetic flux? Just a minute, मैम I will मूवमेंट ask. ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस। You are too पासिंग much फ्रॉम closer. एनी एरिया। मैम किसी भी एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग एनी सरफेस। सब करीब करीब हैं. Very good. मैम सरफेस एरिया कंडक्टर का होता है। जी ह्यूमन एरिया। मैम Okay, जो बच्चों, टर्न्स होंगे उसके मैग्नेट के। in the previous lecture we discussed about the magnetic flux, that is the total number of lines or the density of the magnetic field passing through a certain area. ठीक है, अब it is a moving coil. We discussed that whenever the angle of coil change respective to the direction of magnetic field, the number of lines passing through that you can say coil will change. अगर जो कॉइल है वो 90 डिग्री पे प्रेजेंट है टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो 100% ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will pass through that coil. But if coil is at 0 degree or 180 degree to the magnetic field lines, then zero number of lines will pass through the coil. So this thing vary with the position of coil. ठीक है, magnetic flux vary with the position of coil, and torque is essentially produced when the coil is moving. Okay, torque is always produced in the moving body. Torque produced along the axis of the conductor due to the force F is T is equal to F into the B. And here comes you can say constant K and I.
Since armature is a rotating magnetic field, it will have back EMF, okay, VB, which will be denoted as VB. And the back EMF depend on the rate of flux induced in the coil. Okay, we discussed about EMF. Already the coil is having current in it. So what is meant by back EMF? That is in the opposite direction of the current that is already present in the coil. Back EMF actually resisting the actual current in the coil, and it is favorable in some conditions and favorable in some circumstances, and it can be represented as the k constant into the angular velocity. Then equivalent circuit diagram for DC motor can be represented as this. Then control of brush type DC motor. Speed control can be obtained by controlling the voltage applied to the armature. Obviously, the number of voltages depend upon the movement and the speed of armature. Since fixed voltage supply is often used, a variable voltage is obtained by an electronic circuit. Obviously, if we want to give it a variable voltage, we will attach some kind of electronic circuit to it so that we may get the desirable voltage. Then when AC supply is used, when we talk about the AC, thyristor can be used to control the average voltage applied to the armature. Okay, then PWM, pulse with modulation, control of DC motors by means of control signals from microprocessors. We can also control the voltage, we can also control the turns in terms of voltages by controlling DC motor with the use of microprocessors. Microprocessors are some kind of very detailed and very minute substances, or you can say minor machines that really well control any kind of motor, and they have their own fundamental principles which are not addressed in our syllabus. So here you can see the working of DC motor, electronically controlled high frequency switch to chop the DC, then voltage supply and the chop voltage. अगर हम एक continuous mode में voltage देते रहेंगे तो they suggest that ultimately the motor will get burst or the mechanism will get disturbed. So we must have to chop the voltage. Okay, so brush type motor with non-permanent magnet can be divided as series, shunt, compound, and separately excited. Wound is the word used for the, you can say, the layering or covering of the wire. Okay. Series wound. Armature and field windings are connected in series. This is the armature coil जो हमने अलग से पढ़ा कि कॉइल बना हुआ है और वो रोटेट कर रहे हैं, और ये है फील्ड कॉइल. अब फील्ड कॉइल or armature coil, you can see it is in the series, so it is called the series wound. Highest starting torque, greatest no load speed. Reversing the polarity of supply will not affect the direction of rotation of rotator. Then shunt wound. Shunt wound, you can see, are arranged in parallel combination. They are also called parallel wound. Okay. Armature and field coils are in parallel. Lowest starting torque, good speed regulation, almost constant speed regardless of load. For reversing direction of rotation, either armature coil or field coil supply has to be reversed. Then come to the compound wound. In the compound wound, one field coil is in the parallel combination and other field coil is in the series combination. So two field windings, one in series and another in parallel with armature winding. High starting torque. Obviously, there are two field coil, high starting torque with good speed regulation. Separately excited. As the name indicates that armature and field coil are not connected to a single circuit. They are present separately. They are not physically connected to each other, but they are electromagnetically connected to each other because the current flow through one coil will definitely affect the other coil. Separate control of armature and field coil.
speed of these motors can be controlled by separately varying the armature or field current. So it is very much convenient to use because we can individually control the current and the other controls of both coils as well. Then brushless DC motors. It consists of sequence of stator coils and a permanent magnet rotator. So we discussed about the coils. There will be a number of coils in it and a single permanent magnet. Current carrying conductor fixed and magnet moves. Okay, conductor will be fixed but the magnet move. That is why we termed it as stator coil. Stator coil, यहाँ पर coils are in the static position. Then rotator is ferrite or permanent magnet. The current to the stator coil are electronically switched by transistors in sequence around the coils, switching being controlled by position of rotators. Hall effect sensors are used to input signals related to a particular position of a rotator. You can see how transistors are controlling the positions. 1, 2, 3, 4 are the 4 points shown here, and here is a positive and a negative terminal that are controlling Hall IC and the transistor controlling the movement of current and the movement of coil. Similarly here you can see important MCQ and short question here that according to the rotator position, sensor signals can be sensed by the sensor and they command it as 0 or 1. If there are 3 sensors A, B, C. If rotator position is at 0 degree, sensor A and B will detect as 0 and sensor C will detect as 1. And if rotator position is 60 degree, sensor A will detect as 0, but sensor B and C will detect it as 1, 1, and so on, so on, so on. You can see it really clearly here. Then what is the you can say status of transistor? If 0 degree is the rotor position, transistor A will be on and B will be off, minus में होगा. So on so on. A, B, C तीनों signals को सेंस करना है हमने. मैं इतना डीपली इसको नहीं आपको तंग करूंगी. You just have to remember the sensor signals. 1 है, 0 है, A में है, B में है, C में है. Then if we talk about AC motors, single phase squirrel cage induction motor. It consists of a squirrel cage rotator. What is meant by squirrel? Squirrel. बच्चों, it's an interactive session. You must participate. मैम स्क्वेयर एक एनिमल होता है? जी. Yes, it is an animal, but यहाँ पर ये word इसलिए यूज किया गया है because एक rounding manner में ना, जैसे coil को हम लपेटते हैं किसी के इर्द गिर्द. जी मैम. स्क्विरल केज की फॉर्म में यूज होता है इसमें. जो इंडक्शन मोटर है ना, उसमें एक स्क्विरल केज में आगे आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ. सॉरी, ये रहा दिस. मैम इसमें स्क्वेयर कैसे होगा? ये केज, ये देखिए ना, ये लाइंस ब्लैक ब्लैक इस पे नजर आ रही हैं आपको. जी मैम. 1, 2, 3, ये दीज आर वुंडेड अराउंड इट. और ये इसके इर्द गिर्द इस तरीके से लपेटी हुई होती हैं कि ये एक केज बना रही होती हैं. स्क्विरल केज. स्क्विरल की अगर आप देखो ना, एनिमल का आप देखो स्ट्रक्चर, तो वैसे गोल 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 सा जैसे कोई चीज लपेटी हुई होती है ना, लपेटों वाला पराठा जैसे हम बनाते हैं, उसको इर्द गिर्द लपेट लपेट के साइड से, इस तरीके से उसकी शेप होती है उस एनिमल की, और इसी लिहाज से उसको स्क्विरल केज कहा जाता है. ये वायर है वो केज की सूरत में लिपटी हुई होती है इसके इर्द गिर्द. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्विरल केज रोटेटर, दिस बीइंग कॉपर,
or aluminium bars that fit into slots in each ring to form a complete circuit. It consists of a stator having set of windings. Then alternating current is passed through stator winding as alternating magnetic field is produced. Obviously, if AC current is passed, then AC magnetic field will produce. As a result, EMF are induced in conductors in the magnetic field. Initially, when rotor is stationary, net torque is zero. Motor is not self-starting. We have to give some kind of the stimulus to get it start. It is the diagrammatic representation of the motor. Rotor conducting giving the squirrel cage. You can clearly see here as well. Then each ring connecting the ends of all conductor to give the circuits in which current are induced. Then three-phase induction motor, 3 windings located 120-degree apart, each winding being connected to one of the 3 lines of supply. 3-phase reach maximum current at different times. Magnetic field rotate round the stator poles, completing one rotation is one full cycle. So completing one 360-degree angle will be considered at the one cycle, and it can be start by itself because of the induced EMF. Then comes to the synchronous motor. In the synchronous motor, there is a permanent magnet right in the mid of the rotor, similar to that of induction motor, but rotor will be a permanent magnet. Magnets rotate with the same frequency as that of rotating magnetic field, which rotate 360-degree in one cycle. It is used when precise speed is required. It is not self-starting. We must give some kind of, you can say, stimulus to start it. Speed control. How can we control the speed? Is done by provision of variable frequency supply. We can change the frequency of current to control the speed. At high frequency, more of the current will flow. At the low frequency, less of the current will flow. Torque is constant when ratio of applied stator voltage to frequency ratio is constant. Then AC is rectified to DC by converter and inverted back to AC when a selected frequency. AC जो है उसकी आप समझ लें कि वेव फॉर्म को रेक्टिफाई करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डीसी मोटर बाय कन्वर्टर इन्वर्टेड बैक टू एसी विद सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और उसको आप दोबारा से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं एक खास फ्रीक्वेंसी सेट करके. अब जो जितने डीसी इन्वर्टर्स हैं वो सेम मैकेनिज्म पे वर्क कर रहे हैं. दैट इज दे आर यूजिंग द रेक्टिफाइड एसी करंट टू कन्वर्ट इट इनटू डीसी करंट, and that's why they are using less amount of voltages. It is the end of lecture. Now I will ask some questions. Did you get idea of the presentation? Yes, ma'am. Okay. One by one, you people will repeat it. Whatever you have learned in it, you will summarize it. Okay. Fine, ma'am. स्टार्ट करें. समरान, आप सबसे पहले प्रेजेंट करें, समराइज करें इसको जो भी हमने पढ़ा है इन सिंपल वर्ड्स. मैम, हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास डीसी और एसी मोटर्स होती हैं. डीसी जो डायरेक्ट करंट करती हैं और एसी जो अल्टरनेटिव करंट करती हैं. और इसमें हमारे पास आगे जो है डीसी मोटर्स में हमारे पास स्टेटर लगे होते हैं
और इसमें हमारे पास मैम ये आपकी स्लाइड से शो नहीं हो रही। बेटे मैं स्लाइड शो करूँ या आप ऐसे ही समराइज करेंगे? ठीक है मैम, तो इसमें हमारे पास जो सा स्टेटर मैग्नेट लगे होते हैं जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इसमें वेरी हमारी गुड। फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं और इसमें हमारे पास स्प्लिट रिंग होता है और ये जो सा रोटेट करता है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो सी है ना मैग्नेट्स के बीच में प्रोड्यूस होती है, जो कि करंट को जो सा ना फ्लो का बता को रही कनेक्ट होती है। करता है कॉइल को कनेक्ट करता है करंट से। वेरी गुड। नेक्स्ट। ठीक हो गया। आमिना आप बताएं। ट्राई टू समराइज इट। आमिना सईद हैज। ओहो आमिना कहाँ चली गई? आमिना सईद। आमिना। जी yes ma'am. Amna, will you please summarize the lecture? Ma'am, we have studied DC motors and AC motors. The Yes. uh, the AC motors is with the supply of alternative current, and the DC motors are with the supply of direct current. And in AC motors, uh, the the parts of the DC motors are a stator, which is a magnet. It can be sorry, it is a magnet, and after that a brush, a split ring, and rotor. And Okay. in the alternative, ओहो आमना सईद का नेट चला गया। It's okay. Akasha, will you please summarize the lecture? Yes, ma'am. Sabahat and Ma'am, Farhan have same. Okay. Akasha, will you please summarize the lecture? yes, ma'am. Ma'am, in this lecture, we have studied DC motor and AC motor. Actually, DC motor is a device which converts the electrical energy into the mechanical one, which use direct current. And मैम बेसिकली इसका डिफरेंस यही है कि डीसी मोटर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, और जो ऑल्टरनेटिंग है उसके अंदर हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। Very good. और मैम इसके अंदर इनके जो पार्ट्स हैं उसमें ये है कि डीसी में जो है वो मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, कॉम्यूटेटर होता है और आर्मेचर है, स्प्लिट रिंग होते हैं, इसमें ब्रशेस होते हैं। लेकिन उसी के बेटा दोनों ऑपोजिट मोटर्स जो है ना, दोनों मोटर्स में हम सेम थीम पे काम कर रहे हैं। एसी एंड डीसी मोटर्स पे हम इलेक्ट्रिकल को ही मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो जो दूसरा टॉपिक है ना जिसमें हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, जी वो हम एक्चुअली आगे जनरेटर का है। जी वो जनरेटर का है, वो हम आगे जी बढ़ेंगे। अभी हम दोनों में मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो हम कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं, बेसिकली हम उसको काम करवा रहे हैं मैकेनिकली ना। सही है, जी ठीक है, आगे बताएं। ठीक। और नेक्स्ट में मैम इसका ये है कि मतलब आर्मेचर जब रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका डीसी मोटर में करंट पास करता है ना आर्मेचर में से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करवाता है। ये इसके साथ वेरी जो गुड। ब्रश जो है वो कनेक्ट होते हैं इसकी बैटरी के साथ, और जब करंट जो है वो फ्लो करता है आर्मेचर कॉइल के थ्रू, तो जो वेरी गुड। फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करवाती है इसमें, और जो टॉर्क है वो आर्मेचर को रोटेट करवाती है। फिर इससे जो है इसकी अगर तो करंट जो है कॉइल के अंदर वो सेम डायरेक्शन में है, तो टॉर्क जो है वो इसका रिवर्स होगा, बिकॉज ऑफ कम्यूटेटर जो है वो हाफ स्प्लिट रिंग में होता है ना, लाइक ब्रशेस को वो मूव करता है इन द सेम डायरेक्शन, और जो सेकंड वन होता है वो उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है मैम। वेरी गुड आकाशा। खुबैब आप बताएं, खुबैब को क्या हो गया है? खुबैब को कुछ मैम ये हो गया मेरा है, गोल क्यों? है, मैं उर्दू में लिख के दे रहा Your chat is also being recorded. हूँ। मेरा माइक मैम मैं एक्सप्लेन करूँ।
मैम हमने एसी और डीसी मोटर्स के बारे में पढ़ा है जो कि हैं कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और ये जो होती है मैम बेसिक डिफरेंस होता है पावर सोर्स में। एसी मोटर जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, डीसी मोटर जो होती है वो डायरेक्ट करंट होती है। इन दोनों में से जो सप्लाईज होती हैं इन दोनों में क्या? मैम इसमें जो होता है एसी और डीसी जो होती हैं पावर कन्वर्टर होती हैं। डीसी में जो होते हैं मैम फील्ड मोटर होती हैं जो कि कंस्ट्रक्ट होती हैं इससे और कम्यूटेटर से, जिसको हम ऐड करते हैं मेंटेनेंस के लिए लिमिट, जिससे हमारी जो है स्पीड लिमिट रिड्यूस होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है डीसी मोटर की इंड्यूस होती ठीक हो गया। है। और फिर एसी इंडक्शन में जो होती है मोटर्स जो होती हैं उसके ब्रशेस नहीं होते, वो जो रग्स होती हैं उनकी जो होती है लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है। उसमें जो फाइनल बेस तो मैम वो होता है कि ये स्पीड कंट्रोल वगैरह कर लेती हैं। और जो स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर करती है वो मैम एमेच्योर की वजह से करती है, वाइंडिंग करंट। और एसी मोटर जो करंट कंट्रोल करती है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से करती है। मैम अभी तक इतनी ही समझ आई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट विल बी फैजान। यस मैम। मैम क्वेश्चन क्या है? फैजान, will you please summarize the मैम जो lecture? ओके मैम। मैम हमने आज जो है वो डीसी मोटर एसी मोटर के डीसी जनरेटर के बारे में मोटर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जो हमारे पास डीसी मोटर होती है वो हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समरा, मैकेनिकल एनर्जी में फैजान कन्वर्ट आपकी करती आवाज़ बहुत लो है। है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास वायर होती है, उसको हम लोग मैग्नेट के साथ अटैच करते हैं। उसके साथ उसमें उस वो जो वायर होती है उसके साथ ब्रशेस भी अटैच होते हैं। जब हम पीछे से एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करते हैं लाइक करंट का, तो लाइक कि हमने पीछे से वोल्टेज प्रोवाइड की है, उससे जब जी वोल्टेज जी। प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्रशेस होते हैं वो मूव करते हैं। जब ब्रशेस वेरी मूव गुड। करते हैं उसके साथ लगी हुई जो कॉइल होती है, जो वायर होती है, वो भी मूव करने लग जाती है। तो इससे क्या होता है वेरी कि गुड, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वेरी गुड, उसके वेरी बाद नाइसली एक्सप्लेन। उसके बाद एंड मैम एसी जनरेटर ये हमारे पास हम्म अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। और ये इसके अलावा ये हमारे पास करंट कन्वर्ट करते हैं, ये भी कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और ये अल्टरनेटिंग करंट जो ऐसा करंट होता है जो कि वोल्टेज की वजह से वोल्टेज को सोर्स में रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम जरिया बनाते हैं अपना जैसा बैटरी वगैरह। और उसके बाद जो है वो रिवर्स इसको मूवमेंट करवाई जाती है इसी तरीके से जिस तरह से हम लोग डीसी मोटर में कॉइल की मूवमेंट करवाते हैं। लेकिन वेरी ये गुड। थोड़ा सा उससे अपोजिट ही से आगे होता है क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग के डिफरेंट मराहिल से गुजर के जाना होता है। लेकिन वहाँ पर जो वो डायरेक्ट आप करंट प्रोवाइड करते हो और जो आपकी स्प्लिट होती है वो मूवमेंट क्रिएट करने लगती है। वेरी गुड फैजान। बिलाल अंजुम। Yes, ma'am. थैंक यू मैम। वेलकम फैजान। Will you Uh, please summarize the today, lecture once again? today we will discuss about the DC motor and AC motor. DC motor is direct current and AC motor is alternative current. DC जी। motor contains the rotator and two poles, south and north pole. Yes. In these motors, we will connect the wire into the with the magnetic field. The brushes move and electric current is converted. The energy is converted electrical energy into mechanical energy. Electrical energy will be converted into mechanical energy. Yes, ma'am. ठीक है। Okay. Next, what have we learned about DC motor? Oh, sorry, AC motor. मैम एसी मोटर अल्टरनेटिव करंट होता है। जी। एसी मैम मोटर अल्टरनेटिव करंट नहीं होता बेटे। एसी मोटर में अल्टरनेटिव करंट यूज होता है एज अ सप्लाई। ठीक है, ओके। ठीक हो गया। आमना, आकाशा, बिलाल,
हाफजा शिजा, आप मौजूद हैं? वेरी गुड बिलाल, नाउ यू कैन म्यूट योर माइक। Okay, ma'am. Thank वेलकम। हाफजा शिजा, हाफजा शिजा, शिजा बेटा धोखा दे रही है हमें। चलें जी। यस मैम। मौजूद थी तो बोल क्यों नहीं रही थी यस मैम? हाफजा शिजा, जी मैम, मैं इधर ही हूँ। okay, okay, will you please summarize the lecture, dear? नो मैम, आज नहीं। Try to summarize, you can do it easily. It's just मैम some हमने दो चीजें पढ़ी हैं, information. डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट में डायरेक्ट करंट यूज होता है और एसी करंट में अल्टरनेट करंट यूज होता है। और हमने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा है कि उसमें रोटेटर होता है, स्प्लिट रिंग्स होते हैं और क्या होता है पता नहीं। और मैम एंड पे हमने ये पढ़ा था कि एक वर्किंग बता करंट दें, में जो होता है वो कन्वर्टर। जी मैम। वर्किंग बता दें, वर्किंग। अगर आपको कोई बात नहीं, if you don't remember the parts, it's okay. We are not legends कि हम पढ़ते ही याद कर लें, but we can recall some things from the lecture. अगर मैम हमने ये पढ़ा था कि एसी करंट में कन्वर्टिंग करंट करता है जब वो अल्टरनेट करंट यूज करता है ना, फिर वो डीसी मोटर। मैम सही तरह याद नहीं आ रहा। एफएससी से थोड़ा सा रिकॉल कर लें। डीसी मोटर में करंट यूज होता है डायरेक्ट, और अल्टरनेटिव मोटर में जो करंट यूज होता है वो है अल्टरनेट करंट। एसी मोटर और डीसी मोटर में मेन हमने जो डिफरेंस पढ़ा वो ये था कि एक में मैग्नेट फिक्स है और दूसरे में मैग्नेट फिक्स नहीं है। मैग्नेट क्यों नहीं फिक्स? क्योंकि करंट ही अल्टरनेट आ रहा है, इस वजह से हमें उसमें एसी करंट में हम कॉइल को रोटेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। कॉइल को रोटेट करने का कोई मकसद नहीं है, इस वजह से हम मैग्नेट को रोटेट करते हैं ताकि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो सके, और ताकि हम समझ लें कि अपनी मोटर को ख़राब होने से बचा सकें। उसमें हम शंट्स लगाते हैं कुछ। अब वो किस तरह से होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। 4 तरह से होते हैं जो उसको इर्द गिर्द जो है समझ लें कि वाइंडिंग की तरह से मौजूद होते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं लेक्चर में, अगर आप समराइज़ करना चाहें तो आप अपनी पसंद की कुछ चीज़ें, आप पसंद से मुराद ये है जो आपको ईज़िली, जिनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो, आप बता दें तो वो आपका टीचर एक्सेप्ट कर लेता होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कहूँ कि आप वर्ड टू वर्ड बताएं, ठीक है? तो परेशान नहीं होते, कॉन्फिडेंस से आंसर करते हैं। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो पहले कोशिश करें कि उसको आंसर करें, पहले ना नहीं करते होते, ठीक है ना? यस मैम। चलें, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, आ जाएगा आपको समझ। मैम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ओके डियर, ओके। राहिम आप बताएं। यस मैम। What we have learned in today's lecture? मैम मैंने अभी सॉरी ज्वाइन की है, मुझे पता नहीं लगा, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा है। आपको क्या लग रहा है मैंने आपसे क्यों पूछा? मैम ये डीसी और एसी का आप बता रही हैं, डीसी मोटर और एसी मोटर। Why you joined late? मैम वो इंटरनेट का इशू था। ओके, कोशिश करें कि आप लोगों के इंटरनेट के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाए ताकि आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लें। मासूमा, आर यू विद अस? मासूमा इरफान। मासूमा, मासूमा, मासूमा आपने भी धोखा दे दिया। ओके, इम्तियाज सुभानी। Yes, ma'am. Imtiaz, would you like to summarize the lecture? Okay, ma'am.
हम इस लेक्चर में हमने डीसी मोटर और एसी मोटर के बारे में पढ़ा। डीसी मोटर को डायरेक्ट करंट सप्लाई करते हैं और इसमें स्टेटर लगा होता है जो मैग्नेटिक होता है, और आर्मेचर होता है, रोटर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एसी मोटर को एसी करंट सप्लाई करता है। ये इसमें इसमें फिक्स नहीं होता क्योंकि अल्टरनेटिव करंट पीछे से आ रहा है, तो ये फेज बाय फेज चेंज होता रहता है। वेरी गुड। और फिर हमने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था आगे। वो टोटल फील्ड अराउंड जो मैग्नेटिक के इर्द गिर्द होते हैं, अराउंड मैग्नेटिक्स जो फील्ड प्रोड्यूसेस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइन प्रोड्यूसेस होती है, और जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, प्रोड्यूस होती है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। Magnetic flux, number of lines passing through any area of coil is called the magnetic flux. Okay, good इम्तियाज। थैंक यू। Now, any volunteer जो कि खुद से बताना चाहे? खालिद आप बताएं। खालिद? धोखा। मैं बताऊं? जी आप बताएं। मैम इसमें सबसे पहले हमारे पास है डीसी मोटर, ठीक है। इसकी वर्किंग क्या होगी? इसमें जो करंट फ्लो करता है हमारे पास डायरेक्ट करंट होगा, ठीक है। देन इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या है? मैग्नेट है, ठीक है। उसमें हमने कॉइल रखी है, और कॉइल के जो एंड पॉइंट पे है हमारे पास स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं। स्प्लिट रिंग जो कि सेपरेट होते हैं जब कॉइल मूव करती है, और इनके साथ ब्रश बॉर्डर होगा। और ये जो मोटर है डीसी मोटर हमारे पास यूज होती है डायरेक्ट। इसमें जो करंट फ्लो करता है ये डायरेक्ट यानी होता है, और ये मोटर ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर्स में यूज होती है। देन हमने बताया था अल्टरनेटिव यानी एसी मोटर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो करंट फ्लो करता है वो एसी करंट फ्लो करता है, और उसकी कंस्ट्रक्शन में भी यानी कि मैम आगे करें स्लाइड में, उसमें भी यानी मैग्नेट होगा, ठीक है। उसमें कॉइल होगी, जब वो कॉइल मूव करेगी मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और इस ड्यूरिंग यानी कि करंट चेंज होता है। और ज़्यादातर ये जो एसी मोटर्स यूज़ होती है ये ट्रांसफार्मर्स में यूज़ होती हैं, उनमें क्योंकि उनमें करंट यानी चेंज होता रहता है। और स्टेप अप वेरी गुड साइमा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। मोहम्मद सलमान। साइमा नाउ यू कैन म्यूट योर माइक। मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। बच्चों धोखा कितने बच्चे दे रहे हैं ना? ओके मोहम्मद सलमान। यस मैम। बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, एनी वॉलंटियर जो खुद से एक्सप्लेन करना चाहें? एनी ऑफ यू? ओके, लास्ट स्टूडेंट से पूछ लेते हैं हम। हदीका अमजद। हदीका अमजद। हदीका अमजद। हदीका अमजद। 3 लोगों ने हमें धोखा दिया इस क्लास में। बड़ी गलत बात है। यस सबके मैम। नाम। अतीका नूर। ये तो होगा। अतीका नूर। मैम आप इन सबकी एब्सेंट लगा दें, इन सबके ना 5-5, 10-10 मार्क्स काट लें। ओहो, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, पहले उनसे तो पूछ लें। मैम इनकी ये मजबूरी हो गया, नेट चला गया होगा। Atika Noor is also not present here. Bilal Anjum. Yes, ma'am, present. Bilal Khan. Yes, ma'am. Faizan Riaz. फैजान अच्छा बच्चा धोखा कर गया। सुना के गए हैं मेरा ख्याल है। फजीलत ईमान। फजीलत ईमान। ओके, फिजा ओ। फिजा आपने अपना नाम कैसे लिखा हुआ है? मैम वो खुद ही लिखा है।
ओ पता नहीं ओके कैसे आगे मैंने फिजा लिखा था। ओके ओके ओके। हदीका अमजद। हाँ, हदीका अमजद का चैट में टेक्स्ट आया है कि नेट में कोई इशू है। हदीका, यू कैन टर्न ऑन योर माइक एज वेल। हाफिजा शीजा। यस मैम। ओके, वेलकम सवेरा इकबाल। हिना, हिना इलियास। प्रेजेंट मैम। हिना तलत। प्रेजेंट मैम। ओके, इम्तियाज सुबहानी। इम्तियाज सुबहानी, इम्तियाज सुबहानी। मैम ये तो मैम ये चीटिंग हो रही है मैम। काफी ये ज्यादा गलत। चीटिंग हो रही है। मैम ये सारे लोग अब टपक पे हैं, आप ये पहले वाले लोगों की प्रेजेंट लगाएं, अब वालों की ना लगाएं। ठीक है, ओके। जवेरिया अजीम। प्रेजेंट मैम। खालिद गजनवी। प्रेजेंट मैम। खालिद, आप अभी थोड़ी देर पहले कहाँ थे? मैम कनेक्शन का मसला आ रहा था। अच्छा, सॉरी मैम, वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। कोई मैम ये बात बाज नहीं आते। खुबैब, खुबैब खान। मैम मैं तो इधर ही हूँ प्रेजेंट। ओके ओके। मैं तो महा अपनी जगह मरातब। ही हूँ। महा मरातब। प्रेजेंट मैम। महनूर इफ्तिखार। महनूर इफ्तिखार। प्रेजेंट मैम। मरियम प्रेजेंट मैम। इलियास। प्रेजेंट मैम। वेरी गुड। मासूमा इरफान। प्रेजेंट मैम। मासूमा, मासूमा आप अभी थोड़ी देर पहले कहाँ थी? जहाँ पे अब चली गई हैं बेचारी वहीं थी। ओके। मुशद रजा। प्रेजेंट में आती ही नेट चली गई। मेरा नेट जो है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और खुद ही ओके ओके रीजॉइन आ जाता है। ओके ओके ओके। अच्छा, आप लोग कोशिश करें कि अच्छा नेट यूज करें। मुशद रजा। मुशद। अस्सलामुअलैकुम मैम। प्रेजेंट। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स। राहिम, ठीक है। प्रेजेंट मैम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया वाहिद। प्रेजेंट मैम। साइमा शराफत। प्रेजेंट मैम। मैम यही लगा दे, मेरा नाम गुजर गया, वो नेट नहीं था आ रहा। आप कौन है? फिजान मैम। मैम मैं फिजान फैजान रियाज। रियाज। फैजान, मैंने आपकी अटेंडेंस कंसिडर कर ली थी। चलें ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। समरान इरशाद। प्रेजेंट मैम। सवेरा इकबाल। प्रेजेंट मैम। सवेरा, वेलकम टू द ग्रुप। कहाँ थी ये आप तो इतनी देर से? Savera, why you joined late?